Hello students, this is chapter number 8, more on internet. Let's start. What is internet? The term internet stands for network of networks or interconnected networks. तो दुनिया भर में कंप्यूटरों का जिस तरह नेटवर्क होता है इज कॉल्ड द इंटरनेट. Network is a group of computers connected together. There is a hub network of computer connected to each other by telephone line, lease line, radio waves, and satellite, enabling them to share information amongst each other. Uses of the internet. Now, internet is considered as the most effective mode of communication. Its various uses are: it is used for surfing. Surfing means किसी information को search करना on the internet या किसी information को आप पढ़ रहे हैं internet के ऊपर, उसे surfing कहते हैं. Looking information on any subject. कम्युनिकेटिंग विद पीपल, एक दूसरे से जुड़ना इंटरनेट के थ्रू माध्यम से. ऑनलाइन शॉपिंग, कुछ भी ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज करना. बुकिंग रेलवे एयर टिकट्स, अगर किसी भी टिकट को परचेज कर रहे हैं वो भी इसी में आता है, फीचर्स हैं. नोइंग लेटेस्ट क्रिकेट मैच स्कोर. सेंडिंग ग्रीटिंग कार्ड्स, सेंड एंड रिसीव मैसेजेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड. अगर आप इंटरनेट के थ्रू किसी मैसेज को सेंड कर रहे हो, लाइक ईमेल करना, ये सब इसी के पार्ट्स हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ल्ड वाइड वेब, ट्रिपल डब्ल्यू. ट्रिपल डब्ल्यू क्या होता है और वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स. दीज साइट्स कलेक्टिवली form a web like structure over the internet. That is, various sites are stored at various places all over the world. That is why it is called World Wide Web. Next one, websites. A website is a collection of more or one related web pages linked together through a system of hyperlinks. A website is just like a magazine, as we can flip through the pages of a magazine. We can move from one page to another on a website using the hyperlinks. Moving from one website to another is called net surfing. वही था कि अगर आप किसी इंफॉर्मेशन को पढ़ रहे हो तो हम लोग एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं, ये सारे पार्ट्स सर्फिंग के होते हैं. वेब पेजेस, द इंडिविजुअल पेजेस विच collectively from the World Wide Web are known as web page. These pages contain text, graphics, audio, video, and link to other web pages. The link of one page with another is called hyperlink. A text that contains link to another document is called hypertext. What is web browser? It is a software which is used to access information on the internet. A web browser is display pages in its own windows. Example: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Netscape Navigator, UC Browser. These are examples. Next one, URL. What is URL? URL means Uniform Resource Locator. It is the address of location of website on the internet. For example, http colon double slash www.yahoo.com या http colon double slash www.rediff.com और http colon double slash www.cartoonnetworkindia.com. These are examples of URL. URL means complete address of the website on the internet. Home page. It is the first page of the main page of your website that display when the URL of website is typed. A home page contains introductory information about the website that has been accessed together with link to the actual details of the services or information. जैसे कि न्यूज़पेपर में भी मेन पेज होता है, उसको भी हम होम पेज बोल सकते हैं. तो होम पेज पे भी अगर आप देखिए न्यूज़पेपर पे क्या होती है, लिमिट में इंफॉर्मेशन होती है, बाकी इंफॉर्मेशन फर्दर रेफर होती हैं पेज नंबर 2, पेज नंबर 8 या लास्ट पेज के ऊपर. सेम थिंग्स हियर. Opening a website, मतलब how to open a website on the internet. To open a website, first get connected to the internet
विद द हेल्प ऑफ ISP। सबसे पहले हमको अपने कंप्यूटर सिस्टम पर इंटरनेट ऑन करना होगा, ठीक। और इंटरनेट की फैसिलिटी जो आपको प्रोवाइड करते हैं उनको बोलते हैं ISP, मींस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। Second thing which is needed in your computer is modem, which help you to connect your computer with the telephone line. Modem stand for modulator demodulator. It help to send the information from your computer to other via telephone line. If your computer is connected with the telephone line using modem, then connected to the internet. Double click the ISP icon on the desktop. Enter the username and password given to you by the ISP. Now click the dial button. After the authentication of username and password, you will be connected to the internet. Double click Internet Explorer this icon on the desktop too. मतलब कि सबसे पहले आप इंटरनेट को ऑन कर रही है किसी भी टेक्निक से, किसी भी वे से, चाहे डायल अप कनेक्शन के थ्रू, चाहे लीज लाइन के थ्रू, या वायरलेस के थ्रू, या अपने मोबाइल को अपने पीसी या लैपटॉप से कनेक्ट करने के द्वारा, या कि हॉटस्पॉट ऑन करके आपने डेस्कटॉप या लैपटॉप के वाईफाई से आप कनेक्ट कर लीजिए। देन ओपन इंटरनेट एक्सप्लोरर, टाइप द URL ऑफ योर वेबसाइट इन द एड्रेस बॉक्स। जो भी आपका वेबसाइट है जिसे खोलना चाहते हैं उसके कंप्लीट एड्रेस को ब्राउजर में टाइप करिए और प्रेस करिए कहां पर, एरो बटन पर, मैं प्रेस कर दिए एंटर। आफ्टर सम टाइम सी ए वेब पेज इन द विंडो, थोड़ी देर बाद देखेंगे कि वो वेबसाइट आपके ब्राउजर में ओपन होकर सामने आ जाएगी। सर्फिंग द नेट, moving from one page to another or from one site to another on the World Wide Web using link on the page is called net surfing. When a website is open in the web browser, the home page of that website appears in the window. Home page contains the link of other pages. When you bring the mouse pointer on this link to it's turned to a hand shaped arrow. जैसे आप लिंक पे लेके जाएंगे माउस पॉइंटर आपका एक एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। Open the correct page in the browser. सर्च इंजन्स, सर्च इंजन्स क्या होते हैं? सर्च इंजन्स आर यूज्ड टू बुक फॉर एन इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। दे अलाउ द यूजर टू एंटर द कीवर्ड, इट सर्च फॉर द इंफॉर्मेशन एंड डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ वेबसाइट द रिलेटेड इंफॉर्मेशन। So a search engine can be defined as a program that search through a collection of web pages for particular information. सर्च इंजन वो होते हैं जिनके द्वारा हम किसी वेबसाइट को फाइंड कर सकते हैं, एक प्रकार की डायरेक्टरी समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल गूगल, गूगल का नाम सुना होगा, गूगल इज एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन। गूगल से ही हमने किसी भी वेबसाइट को फाइंड करके देख सकते हैं। आपको जिस टॉपिक को फाइंड करना है उस टॉपिक को गूगल में टाइप कीजिए, जैसे आप गो पे क्लिक करते होंगे उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है। अब जैसे नेक्स्ट है याहू सर्च इंजन, उसके थ्रू कर सकते हैं। ऐसे होता है इंडियन सर्च इंजन का नाम क्या है, ये भी क्वेश्चन है। तो इंडियन सर्च इंजन का नाम है खोज.com। तो आप किसी भी सर्च इंजन को यूज करके अपने इंफॉर्मेशन को इंटरनेट के ऊपर फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्च इंजन। सर्च इंजन आपकी वेबसाइट्स नहीं होते हैं, ये वेबसाइट्स को सर्च करके देते हैं। नेटिक्वेट, there is a special set of manners of internet called netiquette. Some of netiquettes are respect the privacy of other people, respect the people online right, do not give our personal information on the internet such as your address, telephone number, parents' work address or name and location of your school without parents' permission. You should tell your parents about every information that make you feel uncomfortable. Do not ever send anyone your picture to anything else on the internet without first checking with your parents. If you join a game or chat group on the internet with your parents' permissions, you should never tell anyone your password to the game or the chat group. आपके लिए सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ जो आप लोग इंटरनेट पे यूज करेंगे, क्योंकि यू आर फ्रेशर बिगनर्स। इंटरनेट के ऊपर आपके प्राइवेसी पार्ट होता है, आप कभी भी अपने किसी भी इंफॉर्मेशन को इंटरनेट के ऊपर शेयर नहीं करेंगे, ठीक। आप कभी भी अपनी फोटोग्राफ्स किसी को विदाउट परमिशन पेरेंट्स के आप नहीं देंगे। अगर कोई इंफॉर्मेशन आपकी ऐसी हो जो आपकी अनकंफर्टेबल आपको लग रही है तो सबसे पहले आप सूचित इंफॉर्मेशन अपने पेरेंट्स को करेंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज ईमेल। ईमेल क्या है? ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल अलाउ यू टू रिसीव एंड सेंड टेक्स्ट मैसेजेस and computer files, that is picture, movies clip, sound clip from one computer to another, to anyone in the world who is connected to the internet.
आप इंटरनेट के माध्यम से आप किसी भी मैसेज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे सेंड कर सकते हैं, इज कॉल्ड इंटरनेट। इंटरनेट में मतलब कि ईमेल में ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ओपनिंग ईमेल अकाउंट विद ISP। In order to send and receive email, first we need to open an account with। अगर आप किसी को कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपका अपना एक खुद का ईमेल अकाउंट होना चाहिए जो कि ISP के द्वारा बना हो या किसी अदर वेबसाइट्स पर बना हो जो कि फ्री हो। क्लिक इंटरनेट एक्सप्लोरर दिस आइकन डेस्कटॉप टू ओपन इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर जो होता है उसको आप ओपन कर लिए। उसमें स्मॉल ई ब्लू कलर से बना होता है। ये माइक्रोसॉफ्ट का डिफॉल्ट ब्राउजर है जो कि मैक्सिमम आपको हर कंप्यूटर मिलेगा। विंडोज बेस्ड जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर जो कंप्यूटर हैं सब पर इंटरनेट एक्सप्लोरर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है। द मेल देन सर्च फॉर साइन अप एंड क्लिक। फिर आप साइन अप करिए। रीड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड फिल देम। सारी इंफॉर्मेशन को पढ़ लीजिए जो पढ़ना चाहते हैं। एंटर ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड। अपना जो भी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड है फिल कीजिए। Consist of a username @ and the ISP address. Example abc@yahoo.com। मतलब abc नाम का यूजर है जिसका ईमेल आईडी yahoo.com पे बना हुआ है। सेंडिंग ईमेल गेट कनेक्टेड टू योर ISP। सबसे पहले अपने लॉगिन हो जाइए, कनेक्ट हो जाइए। चेक मेल, वहां पे इनबॉक्स पे क्लिक कर दीजिए। साइन इन योर ईमेल अकाउंट्स बाय एंटरिंग योर आइडेंटिफिकेशन नेम एंड पासवर्ड। अपना यूजर नेम पासवर्ड फिल करेंगे, ठीक, तभी आप इनबॉक्स तक पहुंच सकते हैं। Note your username, your identification. Now open your mail account windows. Click Compose to open your email Compose window. Type information in the field. Compose पे तब क्लिक करेंगे जब आपको कोई मैसेज किसी को सेंड करना चाहते हैं, मीन्स किसी को भेजना चाहते हैं कोई ईमेल। टू फील्ड यूज द प्लेस द एड्रेस ऑफ द पर्सन रिसीविंग द ईमेल मैसेजेस। जहां पर टू होता है वहां पर उनका नाम लिखेंगे जिसको मेल देना चाहते हैं, उसका कंप्लीट ईमेल आईडी को आपको टाइप करनी है। CC field. CC stand the carbon copy means sending someone a copy of email message, enter their email address। अगर आप उसकी डुप्लीकेट कॉपी किसी को देना चाहते हैं तो दूसरे व्यक्ति का ईमेल आईडी CC में लिख दीजिए। इसका मतलब होता है कार्बन कॉपी। सब्जेक्ट फील्ड, हियर यू टाइप अ सिंपल टॉपिक हेडिंग ऑफ समरी ऑफ द मैसेज। मैसेज का समरी जो होती है वो सब्जेक्ट फील्ड में आप टाइप करेंगे। मैसेज फील्ड, मैसेज फील्ड, हियर यू टाइप द मैसेज देन क्लिक द सेंड बटन टू सेंड इट ऑफ। तो यहाँ पर जो आपका मैसेज है वो मैसेज पूरा टाइप कीजिए। रिसीविंग ईमेल गेट कनेक्टेड विद ISP। अगर आपको मेल कोई रिसीव करनी तो आई पे क्लिक करेंगे। ओपन योर ईमेल अकाउंट, अपने ईमेल अकाउंट ओपन करिए। क्लिक चेक मेल और इनबॉक्स। चेक मेल पर क्लिक कीजिए या इनबॉक्स के ऊपर, डिपेंड करता है कि जिसकी सर्विस आप प्रोवाइड ले रहे हैं इंटरनेट पर ईमेल एड्रेस एंट्री मेल को यूज करने के लिए उसने अपने इनबॉक्स कैसा बनाया हुआ है, इनबॉक्स पे मिलेगा या अदर ऑप्शन के थ्रू। डबल क्लिक द मैसेज टू रीड इट। जो भी मैसेज आपके सामने आए हैं डबल क्लिक करेंगे तो मैसेज खुल के आपके सामने आ जाएगा। सो नाउ 4 क्वेश्चन फॉर यू। विच इज नॉट नेसेसरी फॉर ए इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन के लिए कंपलसरी क्या चीज नहीं है, मॉडेम, टेबल या टेलीफोन लाइन। इन तीनों में से क्या आंसर है या बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। नंबर 2, मूविंग फ्रॉम वन पेज टू अनदर ऑन वर्ल्ड वाइड वेब इज कॉल्ड। अगर आप एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाया जाता है, नेट सर्फिंग, नेट स्क्रैपिंग या फिशिंग। नंबर 3, डैश इज अ कंपनी दैट प्रोवाइड इंटरनेट फैसिलिटी टू इट्स कस्टमर। ये एक ऐसी कंपनी जो आपको इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है इंटरनेट के लिए, उसका नाम है ISP, BSNL या URL। नंबर 4, डैश इज द यूनिक एड्रेस ऑफ वेब पेजेस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। वेबसाइट का यूनिक एड्रेस क्या होता है, URL कहते हैं या HTTP कहते हैं या हाइपरलिंक। तो क्या आंसर होगा ये आप बताएंगे। देखते हैं कौन सा जीनियस ऑफ द डे, आज कौन सा बच्चा हमारा जीनियस है जो सबसे पहले सबसे सही कंसर्न उन चारों के भेजता है। ये वीडियो कैसा लगा इसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बाय।